Hello everyone, welcome to project 15. Here you will see total 8 queries based on date functions. This is a part of our 25 topics, 25 projects SQL series. We already have released our previous 14 projects. You can please check the playlist. The link is given in the description. In this project, we are going to use the database, which is a store management system, where we have created 4 tables, populated the data. The separate video is given on this. You can check it in the description. Database कैसे create करना है, tables कैसे create करनी है, every detailed step is given in a separate video called Project Setup that you can check. The link is given in the description as well as you can see it above also. So first of all, we have to prepare our database and then we can jump to our queries. So let's start with our first query. We see different date functions here, and for that we are going to use the store management database, which is this. So first of all, we have to instruct the SQL that we are going to use this store database. So for that we need to write use store. Now this database is highlighted and here we can see our tables. We have total 4 tables here. हमारे पास total 4 tables हैं, जिसमें से ये customer table, order details table, orders table और project table. Right, so here we have the columns which are customer ID, name, email and the city. We have to ignore this phone column. Then the order details, order detail ID, order ID, product ID, quantity. Then in the order table we have order ID, customer ID, order date and the total amount. And the last one is the products table. Here we have product ID, the name of the product, categories, price and the stock. Okay, so now quickly write our first query, and this query says to extract the year and month of each year, of each order. हर order की जो date है उसमें से हमें क्या extract करना है, हमें year extract करना है और month extract करना है. तो इसके लिए हम एक date function use करते हैं जिसको अभी हम देखेंगे. So first of all हमें क्या select करना है, कौन से column select करना है वो देख लेते हैं. So हमें select करनी होगी order ID, क्योंकि each order की बात हो रही है. So order के लिए हमें order ID हमारे पास होनी चाहिए और हमें order date select करनी पड़ेगी. Right now अब इस order date में से हमें क्या extract करना है, year. So year extract करने के लिए जो function होता है वो होता है year function, right? और उसमें हमें वो column name देना होता है जिसमें date mention है और फिर इसको एक alias name देंगे. इस नेम से हमारे पास नया कॉलम आएगा जिसमें ईयर्स लिख के आएंगे. अब हमें मंथ एक्सट्रैक्ट करना है. ईयर इससे एक्सट्रैक्ट हो गया. नाउ इट्स टाइम टू एक्सट्रैक्ट द मंथ. सो मंथ के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम मंथ फंक्शन बोलते हैं और हमें यहाँ पे सेम कॉलम देना होगा, डेट का कॉलम जिसमें से हमें मंथ एक्सट्रैक्ट करना है और हम इसको एक एलियास नेम दे देते हैं विच इज मंथ, ऑर्डर मंथ. नाउ ये सारा डेटा किस टेबल में है वो टेबल हम बता देंगे. So it is available in the orders table. Okay. One comma is missing here. One comma is missing here. And now let's run it. So here आप you can see आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास 2 नए कॉलम्स बन के आ गए हैं. ठीक है, ये ऑर्डर डेट है और जो 2 नए कॉलम है वो है ऑर्डर ईयर एंड द ऑर्डर मंथ. So order year इसमें से इन्होंने extract कर लिया है which is 2024, 2023. Similarly month extract कर लिया है जो कि है second means February, 12th, 3rd, 1, 1st, 10th month like this, right? Okay, now come to the second query and it says to show the weekday name of every order. हर ऑर्डर में जो डेट थी उस दिन कौन सा पड़ रहा था, कौन सा वीक डे था वो हमें बताना है. सो वो बताने के लिए हमें जो फंक्शन यूज करना होगा वो हम लिखते हैं. उससे पहले हम जल्दी से वो कॉलम्स लिख लेते हैं जो हमें सेलेक्ट करने हैं. सो ये कॉलम्स हैं जो हमें सेलेक्ट करने हैं. नाउ अब हमें वीक डे किस फंक्शन से पता चलेगा, तो वो पता चलता है डे नेम फंक्शन से. डे नेम, राइट. इसके अंदर हमें डेट वाला कॉलम मेंशन करना होता है और फिर इसको एक एलियास नेम दे देंगे फ्रॉम ऑर्डर्स. ठीक, अब हम इसको जब रन करेंगे then we have the name of the days. So इस डेट पे जो डे पड़ रहा था it was Thursday. इस डेट पे जो डे पड़ रहा था it was Monday and so on. Okay guys,
Now come to our query number 3 and it says to show order that happened on a weekend. ठीक है, अब जो हमने ऑर्डर किया है वो वीकेंड पे प्लेस हुआ है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? सो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम्स जहां से हमें डिटेल्स मिलने वाली है. सो ये हमारे कॉलम्स है. अब जो डे है वीक का, ठीक है, वो हमें कैसे मिलेगा? यहां से तो हमें डे नेम मिल गया था इस फंक्शन से. डे नेम फंक्शन ने हमें डे नेम दे दिया था. इट कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे. नाउ अब डे ऑफ वीक हमें क्या देता है? तो डे ऑफ वीक जो एक हमारा नया फंक्शन है, लेट मी राइट इट क्विकली, डे ऑफ वीक, ये उन डेज को एक एक नंबर असाइन कर देता है. लाइक संडे, तो संडे को असाइन कर देगा नंबर 1. मंडे, मंडे को असाइन कर देगा नंबर 2. ठीक है, सो डे ऑफ वीक फंक्शन हम यहाँ यूज करेंगे सो दैट संडे मंडे विल गेट सम नंबर्स. इसके अंदर हमने कॉलम नेम लिखा और इसको एक हमने एलियास नेम दिया कि वीक डे नंबर. ओके, ये सारा डेटा अवेलेबल है ऑर्डर्स टेबल में. वेयर अब हमें बताना क्या है, वो वाले ऑर्डर्स आप शो करें जो वीकेंड पे सिर्फ प्लेस हुए. ठीक है, तो हम यहाँ कंडीशन लगाने चाह रहे हैं वेयर डे ऑफ वीक, ओके, ऑर्डर डेट इन, ये हम एक लिस्ट दे देंगे. अगर इस लिस्ट में है देन डेफिनेटली वो जो ऑर्डर है वो वीकेंड में प्लेस हुआ होगा. ये 1,7 मीन्स व्हाट? 1 मीन्स संडे एंड 7 मीन्स सैटरडे. संडे से लिस्ट स्टार्ट होती है. संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3 एंड सो ऑन, देन द सैटरडे 7. ओके, नाउ लेट्स रन इट. एंड हियर वी हैव द रिजल्ट. ओके, सो ये वो ऑर्डर्स आ गए जो वीकेंड पे प्लेस हुए हैं. देखिए इनका जो वीकडे नंबर है वो 7 आया, 1 आया, 7 1 7 1. इट मींस दे आर फॉलोइंग ऑन संडे और सैटरडे. नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 4 एंड इट सेज टू ग्रुप ऑर्डर्स बाय मंथ एंड देन काउंट टोटल ऑर्डर्स. ठीक है, so this query says that group orders by month and count total number. मतलब हमें मंथ वाइज डेटा चाहिए, किस मंथ में कितने टोटल ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, that data we want. So for that we firstly need to select the columns. ठीक है, अब हम कॉलम्स में हमें मंथ बेसिकली चाहिए तो हम डायरेक्टली मंथ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे. किसमें से? फ्रॉम द ऑर्डर डेट में से. ठीक, और इसको एक एलियास नेम दे देंगे विच इज ऑर्डर मंथ. अब हमें काउंट करना है क्योंकि हमें टोटल ऑर्डर्स की काउंटिंग चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग ऑल द रोज और इसको हम नाम दे रहे हैं एज टोटल ऑर्डर्स. फ्रॉम विच टेबल? सो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल. और हमें मंथ वाइज डेटा चाहिए तो एट लास्ट वी विल डू द ग्रुप बाय. ग्रुप बाय ऑफ व्हाट? ग्रुप बाय ऑफ दिस मंथ फंक्शन, राइट? दिस इज इट. नाउ लेट्स रन इट. And here we have the month wise total orders. So second month में 18 orders placed हुए हैं. December में which is 12th month 16 orders placed हुए हैं. Third which is March, इसमें 31 orders placed हुए हैं. Okay. Now come to our query number 5 and it says to simulate estimated delivery date by adding 5 days. अब हमें क्या करना है? हमें एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट फाइंड करनी है. ठीक है, बाय एडिंग 5 डेज. तो हम किसमें 5 डेज ऐड करेंगे? जिस डेट को भी ऑर्डर प्लेस हुआ होगा उसमें अगर हम 5 डेज ऐड करते हैं, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि 5 दिन लगेंगे टोटल डिलीवरी में, तो 5 दिन 5 डेज ऐड करने के बाद जो भी नेक्स्ट डे आएगा, डेट आएगी, दैट डेट विल बी कॉल्ड एज एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट. ओके, सो अब हमें क्या करना है? डेट में ऐड कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द ऑर्डर आईडी, देन द ऑर्डर डेट. नाउ अगर डेट में हमें डेज ऐड करने हैं तो वो कैसे करेंगे? फॉर दैट वी नीड टू यूज द फंक्शन डेट ऐड. ओके, डेट ऐड. इसमें हमें क्या ऐड करना है? सबसे पहले वो लिख देंगे. तो हमें ऑर्डर डेट में एडिशन करना है. कितना एडिशन करना है? सो वी नीड टू राइट इंटरवल फॉर दैट. इंटरवल 5 डेज. ठीक है, 5 डेज का इंटरवल हमें ऐड करना है. उसको हम इस तरह से लिखते हैं.
ऑर्डर डेट मतलब किसमें ऐड कर रहे हैं और यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं, इंटरवल ऑफ 5 days. दिस इज द वे टू राइट. ओके, नाउ इसको हम एक नेम दे देते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी और फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल. नाउ दिस इज आवर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट. ठीक है, हर डेट में आप देखेंगे 5 दिन ऐड हो चुके हैं. नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 6 एंड इट सेज टू फाइंड अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट ऑर्डर डेट्स. जो भी अर्लीस्ट ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और जो लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं हमें उनकी डेट्स चाहिए. सो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है मिन फंक्शन. ठीक है, मिन फंक्शन यूज करने से जो सबसे पहली डेट थी जब ऑर्डर प्लेस हुआ होगा वो आ जाएगी. ठीक है, मतलब मिनिमम ऑफ द ऑर्डर डेट. और इसको एक एलियास नेम दे रहे हैं हम एज अ फर्स्ट डेट. नाउ अब लेटेस्ट डेट यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा मैक्स फंक्शन, जो डेट्स में सबसे हाईएस्ट डेट है, जो मैक्सिमम डेट है, और फिर जिस कॉलम पे अप्लाई करना है वो, और इसको एक एलियास नेम. ठीक, फ्रॉम विच टेबल? सो फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल. अब हम इसे रन करेंगे एंड हियर वी हैव द फर्स्ट डेट was 2nd of January 2023 and last date was 14th of May 2024. Now come to our query number 7. It says to calculate number of days between two fixed orders. ओके, 2 फिक्स्ड ऑर्डर्स हैं, उनके बीच में हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं. सो दिस ऑर्डर टेबल में से हम दो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स ले लेते हैं. अगर हम ऑर्डर 101 और 104 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ डेज है. नाउ इसके लिए हम लिखते हैं अपनी कोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट सेलेक्ट, और कितने नंबर ऑफ डेज हैं वो पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसको कहते हैं डेट डिफरेंस. मतलब दो डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे. अब हमको दूसरा पैरेंथेसिस ओपन करना है और इसमें वो डेट सेलेक्ट करनी है. कौन सी डेट? जिस डेट को ये 101 ऑर्डर, पहले हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे जो बाद वाली है. ठीक है ना, हायर में से छोटे वाले को हमको सबट्रैक्ट करना होता है. सो 104 वाले ऑर्डर को हम पहले सेलेक्ट करेंगे. तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? वी नीड टू सेलेक्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स 104. ठीक है, एक तो ये डेट हो गई. दूसरी डेट जो होगी वो होगी सेलेक्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स 101. करेक्ट. नाउ ये जो हमने पैरेंथेसिस ओपन किया था इसको क्लोज करेंगे और इस पूरे को एक नाम दे देंगे एलियास, विच इज डेज बिटवीन ऑर्डर्स. दिस इज इट. नाउ लेट्स रन इट. और यहाँ पे वो जो ऑर्डर्स आए हैं यहाँ पे जो डिफरेंस आया है, दिस इज 12 दिन का डिफरेंस है. टोटल 12 days डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर्स. ओके, फाइन. नाउ कम टू आवर क्वेरी 8 एंड इट सेज टू फाइंड ऑल ऑर्डर्स प्लेस्ड आफ्टर. कोई एक डेट ले लेते हैं और उसके बाद जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो हम फाइंड करते हैं. सो लेट्स टेक एनी डेट दैट इज ये 14th of April 2024. इसके बाद जो भी ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, सो वी विल राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल वेयर ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन, and this date was this. Okay, now let's run it. So here we have all those dates जो इस डेट के बाद
जिनका ऑर्डर प्लेस हुआ है, राइट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारे एसक्यूएल प्रोजेक्ट्स में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. सी यू सून विद द न्यू टॉपिक एंड द न्यू प्रोजेक्ट. टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.